Hello all. Today we will be discussing the part 1 of RBI circular for the month of April. First, I want to tell you that this is the most important of all circulars. That is this part. Okay. Because at the closing, after the closing of the financial year, previous financial year, a number of master directions are issued. I already said the master circulars of all years are important until they are a new circular is issued and instructed that the it supersedes the all previous circulars issued in this regard. ओके, तो जो भी आपको इस मंथ में सर्कुलर मिल रहे हैं, अप्रैल मंथ के पूरे सर्कुलर, अच्छा, दीज आर वेरी एग्जॉस्टिंग इन नेचर एंड हैविंग वेरी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस. यू नीड नॉट टू गो थ्रू ऑल. ओके, बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिप्शंस हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है और आपको पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है, तो उसको हमने पहले से ही कंपाइल करके हटा दिया है. ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर रिलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन हैज बीन scheduled. One more thing, the 32 students had taken the in the batch B2 are having the very poor performance. I don't think that I should uh, take fee from you people. That's why I will be removing all of you except 4 or 5 people who attended the test. Okay, just do not listen the lectures until it benefits you. Neither you are listening to lectures completely, nor you are attempting the questions like MCQ tests that are most important thing for your exam. Recently, I have added the MCQs on RBI, MCQs on currency chest also. Specifically, currency chest video is still not uploaded. It is already having video. It is old video. Okay. Still, I'm not very happy with your performance. Therefore, I say that if your performance continues in such a poor way, I will be deleting that group. And still, I have not taken any money from you for the teaching. I will be relaxed from my responsibility to ensuring your success. Okay. I generally do not want such poor students for educating them, because it not only bad for me, but it is for bad for my career in the teaching field also. Okay, teaching the bad ones is the most dangerous thing that what can a teacher get. Further, we will be come to your point and discussing that you should study master circulars of all year. Already compilation has been shared in the Telegram group. You must go through all. For directions of 1 year are important for your exam, and for PO exams, some which are general banking related circulars only are important, but not like priority sector. These things are not very important for PO exams. For CBO and Skill 2-3 exams, all circulars are important because you are experienced bankers. Okay, we will be moving towards our discussion through the circular. The PDF will be shared in the group, but the MCQ based on RBI circulars or monthly banking awareness is a paid PDF, and you have to pay for all MCQs, all tests. And although it will be shared in the group, but if you go through the link which I shared, you will have to pay some a very little amount as a notional amount. Okay, 10 to 50 rupees are there for each PDF. Okay. Okay, if you like this lecture, you must share and subscribe it. But if you don't like it, you need not to share, subscribe it. Okay. Follow this channel for regular updates and for banking knowledge. Okay, we will be moving towards our discussion. Uh, Here we will be studying आरबीआई सर्कुलर्स. दैट इज पार्ट 1. ये आरबीआई सर्कुलर जो है ये पार्ट 1 है. ये आरबीआई सर्कुलर इज पार्ट 1 फॉर दिस मंथ अप्रैल.
It will be released in two parts. Today is on date of 17th. It is compilation up till 17th. All circulars are included in a brief manner. This is about myself. I am working as a senior manager in a public sector bank. These are my qualifications, and a number of other qualifications are there. But due to page settings, I cannot quote here. These are enough for you people to know. If you like this, you want PDF, you know this, you click this link, you will get will be directed to uh, Telegram channel, and if you will click this link, you will be directed to YouTube channel, and to subscribe it, you subscribe this channel for PDF also. Further, if you are unable, you want to text me some your queries or regarding paid PDFs or anything, you just type @exam zone 24/7. It will show myself to you. You just text me with your details. Okay. I will be adding you in a group, either in a WhatsApp group or any paid group where there are new students, so that you can make your coherence and speed with, okay, with the new students. We will be moving towards our discussion point, and this is the first master circular that is issued. Master circular, this is credit facilities to scheduled caste and scheduled tribes. Okay, I already said that this circular is not important for the exam, means this circular is not important. Okay, you may leave this circular, but there are some government scheme when there is a reservation to all such communities. These are important. ऐसे सभी सर्कुलर जहां पर कम्युनिटीज को रिजर्वेशन दिया गया है जाता है, तो वो अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं किस स्कीम में कितना रिजर्वेशन है या किस स्कीम में इनका रिजर्वेशन है. तो जस्ट यू नीड टू नो ऑल दीज थिंग्स. फर्स्ट इज द दीन दयाल अंत्योदय योजना. दिस I already quoted the scheme is also important for exam. The scheme has been discussed in the paid group already, but it is in the B1 group. Okay, the B1 is only having 17 students, but these are very bright students. Okay, these the discussion has already been shared, and MCQ on the Deen Dayal Antyodaya Yojana also been shared. But the batch B2, if seeing this video, you must know that you are the poorest of the poor. Okay, students, you must. It is time to improve yourself. हाउ लॉन्ग यू विल बी प्रिपेयरिंग, कब तक पूरी लाइफ तैयारी करोगे क्या? डू यू हैव, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अच्छे से करो. जस्ट गोइंग थ्रू हाफ एन आवर और 1 hour or 2 hour also is not going to give you any result in such a tough competition. Okay, not only spending hours, but to be honest, is very important for your career. To be honest refers here what it means, that what I am teaching or where the sources you are resources you are utilizing, you must follow the instructions of your instructor, of your teacher, of your guide. Okay, then only you will get selected. If I am saying something, because you know, I have already switched 3 public sector banks. I know that how the examination you could compete. Huh? You may be able to compete. But if you are going in your own way, then don't expect the selection. If selection comes, it is just by a chance. You didn't plan accordingly. Okay. Then we leave your instructor and go through. Okay. We will be moving towards our point. डे एनआरएलएम क्या होता है? देखो, पहले ये एनआरएलएम से ही जाना जाता था, बाद में इसमें दीनदयाल उपाध्याय जोड़ दिया गया. यू नो दैट ए नंबर ऑफ नेम्स आर बीइंग चेंज, तो उसी का एक हिस्सा समझ सकते हो. तो डे एनआरएलएम उसको कहा गया कि प्रीवियसली कोई लिखा भी प्रीवियसली नोन एज एनआरएलएम वाज लॉन्च्ड बाय. ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में. डे एनआरएलएम इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस. ओके, देन इफ यू स्टडी दिस, देन ओनली यू विल बी एबल टू नो. तो हम थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे और जल्दी से खत्म करेंगे इसको. ठीक है.
was launched by the Ministry of Rural Development, Government of India by restructuring erstwhile स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, इससे पहले ग्राम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलती थी, उसको बंद करके डे एनआरएलएम लाया गया। ये कब से है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना? अप्रैल 1 2013 से। ठीक है, डे एनआरएलएम ये याद रखना, ये डेट इंपॉर्टेंट है, दिस डेट इज इंपॉर्टेंट। डे एनआरएलएम वुड इंश्योर द एडिक्वेट कवरेज ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी सच दैट 50% ऑफ दीज बेनिफिशियरीज आर SC STs। अब देखो, अब ये पूछेगा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ SC ST under day NRLM, or the question can be shown as what is the percentage of SC ST beneficiaries in earlier स्वर्ण जयंती स्वरोजगार ग्राम स्वरोजगार योजना। ओके, देन योर आंसर विल बी 50%। तो SC ST का रिजर्वेशन कितना होता है? 50%। नेक्स्ट वन इज, ओके, दिस इज द फॉर अर्बन एर। देखो, NR से समझो, NRLM, ये आर जो है ये रूरल, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसी को NULM कर दो तो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन हो जाएगा। तो इसमें दीन डी, ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना। ओके, दीनदयाल अंत्योदय योजना के थ्रू सबको ला दिया गया, इसमें डे लगा रहेगा हमेशा। दीनदयाल अंत्योदय योजना, व्हाट? नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, डे NULM। This scheme is also important for exam. It is already quoted here. The Ministry of Housing and Urban Affairs, that MOHUA। ठीक है, अब देखो, अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा ये देखो, ये लिखा रहेगा डे NRLM इज इम्प्लीमेंटेड बाय मोहुआ। ठीक है, और और कुछ दिया रहेगा, तो अगर आपको क्लियर नहीं है तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कर दोगे, या हो सकता है डे NULM इज इम्प्लीमेंटेड बाय, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल लिखा रहेगा, आप उसको टिक कर दोगे। तो ये बहुत क्लियरली याद कर लो, यू शुड कीप इन माइंड दैट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज द डिफरेंट थिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ओके, देखो ये मिनिस्ट्री कुछ और चीजें चलाती है। ठीक है, तो उसके बारे में पता करना। ठीक है, मैं कुछ हिंट दे रहा हूं, PMAY। ओके, उसके और PMAY भी पढ़ लेना अपने से। ठीक है, MOHUA, ये कौन कौन सा स्कीम चल रहा है, ये महुआ की साइट पे आप जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि दिस स्कीम इस अंडर, मिनिस्ट्री के नाम दिए रहेंगे, तो उस पे भी आपको आंसर देना रहेगा। क्या हुआ, ये रिस्ट्रक्चरिंग स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार, पहले स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार थी, अब स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। वहां पे स्वरोजगार था, यहाँ रोजगार है। ठीक है, इफेक्टिव फॉर्म सितंबर 24 2013। ठीक है, वो अप्रैल से चला हुआ था 2013 से, ये रिस्ट्रक्चर करके सितंबर 24 2013 से 2013 से चलाया गया। अंडर डे NULM एवरेज एडवांसेस शुड बी एक्सटेंडेड टू एक्सटेंट ऑफ दियर पॉपुलेशन। ठीक है, अगर SC कहीं पे SC ST की पॉपुलेशन 70% है, तो इसमें 70% हो जाएगा। चलो, अब अगर ये क्वेश्चन आ गया कि द SC ST रिजर्वेशन अंडर NULM इज 50%, 60%, 70%, नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज रहेगा आंसर। ओके, इसमें ये 50% मत कर देना, केवल रूरल एरिया में 50% का कैप है कि 50% से ज्यादा नहीं देना, 50% आप दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट विल डिफरेंशियल रेट DRI स्कीम। देखो, DRI स्कीम बैंक प्रमोशन एग्जाम में आती है, बाकी और जगह नहीं आती है, तो ये नहीं दिया है, लेकिन आपको जानना जरूरी है, नहीं आया है तो इसका मतलब नहीं है नहीं आएगा। देखो, DRI स्कीम बैंक फाइनेंस अप टू 15,000 रुपए, 15,000 उसको देगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे देगा, कंसेशनल 4% पर एनम टू द वीकर सेक्शन फॉर प्रोडक्टिव एंड गेनफुल एक्टिविटीज। देखो, प्रोडक्टिव एंड गेनफुल एक्टिविटीज का मतलब यह है कि वो उसको किसी बिजनेस में, किसी लाइवलीहुड जनरेट करने में लगाएगा। ओके, फर्दर belonging to SC ST such advances should
एक्सटेंट ऑफ नॉट लेस देन 250, टू फिफ्थ मतलब 40% से कम नहीं जाना चाहिए कभी भी आप लोकल डीआरआई एडवांसेस। जो भी डीआरआई एडवांसेस आप देते हो डिफरेंशियल रेट इंस्टेट का 40% मिनिमम है, मैक्सिमम आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है। अच्छा, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया, लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया 1 एकड़ से इरिगेटेड एंड 2.5 एकड़ अनइरिगेटेड लैंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है। बट इट इज नॉट अप्लीकेबल टू SC STs। SC STs के पास में ये क्राइटेरिया लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया नहीं है, तो ये याद रख लो। लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया इज नॉट अप्लीकेबल फॉर SC STs। इवन उनका किसी भी स्कीम में नहीं मिलेगा कि अगर ऐसा है तो आप उनको नहीं दे सकते। दे आर मोस्टली, मैं सब नहीं कर रहा, मोस्टली दे आर एक्सक्लूडेड। तो अगर एग्जाम में नहीं समझ में आ रहा हो कि इसका लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया है कि नहीं है, और अगर वो SC ST से रिलेटेड है, तो आपको वहां पे मार्क कर देना है नो सच क्राइटेरिया। अगर नहीं है तो जस्ट अगर ब्लाइंड गेस मान रहे हो तो उसकी जगह एक डायरेक्शन है, ये नहीं है कि आप वहां पे गेस ही करो। ठीक है। मेंबर्स ऑफ SC ST सेटिस्फाइंग इनकम क्राइटेरिया ऑफ द स्कीम कैन अवेल हाउसिंग लोन अप टू 20,000। अच्छा देखो, 15,000 तो ऐसे इनकम जनरेशन के लिए है, अगर हाउसिंग को मेंटेन या बनाने के लिए ले रहा है 20,000 में क्या हाउस बनेगा? 20,000। बट स्कीम में कोई रिवीजन नहीं हुआ, इसलिए ये ऐसा चल रहा। ठीक है। नेक्स्ट वी विल बी मूविंग इंडिविजुअल SC इंटरप्रेन्योर्स रजिस्टर्ड कंपनीज एंड हैविंग मोर देन 51%। अच्छा देखो, ये कंपनीज तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ये कुछ गलत है। ठीक है। ठीक है। क्योंकि कंपनी की कोई कास्ट नहीं होती, कंपनी SC ST नहीं होती है। ठीक है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप ही पढ़ो, ये RBI के सर्कुलर में एग्जैक्टली यही वर्डिंग्स हैं, तो रहने दो, मैं बताता हूँ आपको। वैसा आएगा भी नहीं एग्जाम में। ठीक है। पार्टनरशिप फर्म्स, हाँ ये हो सकता है कि 25% से ज्यादा उसका कंट्रोलिंग स्टेक हो तो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। इंडिविजुअल SC, हाँ अगर प्रोपराइटरशिप है, प्रोपराइटरशिप है तो आप ये मान सकते हो कि प्रोपराइटरशिप इज ए डिफरेंट थिंग। ओके। प्रोपराइटर और पार्टनरशिप को ऑलमोस्ट आप सेम मान सकते हो, क्योंकि पार्टनरशिप में भी लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होता है। और रजिस्टर, अगर वो पार्टनर प्रोपराइटरशिप फर्म है तब भी कुछ भी फ्रॉड होगा कम उस प्रोपराइटरशिप फर्म के थ्रू, तो उसका जो प्रोपराइटर है उसको ही पकड़ेंगे, तो इस केस में ये हो सकता है प्रोपराइटरशिप कंपनी। चलो, प्रोपराइटरशिप कंपनी से बोलने से अच्छा प्रोपराइटरशिप फर्म बोलें। तो अगर उसका 51% मीन्स मेजर, मेजर से जैसे गवर्नमेंट अगर 51% शेयर है तो वो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट कहा जाता है ना, सेम टू सेम यहाँ भी है। किसी में भी अगर 51% से ज्यादा है तो आप उसको मान सकते हो कि वो SC ST कंट्रोल यूनिट है, उसमें ज्यादातर SC ST हैं, तो उसको आप जो लोन एक्सटेंड करोगे वो SC ST के नॉर्म्स में आ जाएगा। ठीक है। एंड मैंने फॉर द प्रीवियस 6 मंथ बाई SC इंटरप्रेन्योर्स, या उसके साथ ही पहले 6 महीने से जो SC इंटरप्रेन्योर्स हैं उसके उनके थ्रू ही ये कंट्रोल होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ गारंटी अंडर, अच्छा देखो ये कुछ मुझे लग रहा है, ये शायद, 1 मिनट में देखता हूँ। तो कुछ भी, हाँ देखो ये स्कीम है। ठीक है। ये स्कीम छूट गया है। ठीक है। क्योंकि ये देखो ये इंडिविजुअल स्कीम है ना, DRI इंडिविजुअल स्कीम है, DRI में कंपनी नहीं है। वहां पे कंपनी देख के इसका एक बैकग्राउंड CGSE का बता देता हूँ। क्रेडिट इनहेंसमेंट गारंटी स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये अभी आया भी नहीं एग्जाम में, बट आ सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया मई 6 2015 को, मई 16 2015, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग शेड्यूल कास्ट। व्हाट इज द अमाउंट एंड अदर थिंग्स वी विल गो थ्रू। क्रेडिट इनहेंसमेंट बाय मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक्स। ठीक है। विच एक्सटेंड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एंटरप्रेन्योर्स। IFCI, ओके, लिमिटेड हैज बीन डेजिग्नेटेड एज ए नोडल एजेंसी अंडर द स्कीम। तो ये क्वेश्चन आएगा, विच इज द नोडल एजेंसी फॉर CEGSSC स्कीम।
then IFCI is the nodal agency. ठीक है, in the favor of micro lending institution to SC entrepreneurs. नेक्स्ट क्या है, आप समझा रहा था एससी इंटरप्रेन्योरशिप। तो एससी इंटरप्रेन्योरशिप अगर कोई ऐसा कंपनी बनाते हैं जिसमें 51% से ज्यादा एससी एसटी हैं, जैसे पार्टनरशिप फर्म हो, तो उसको आप एससी एसटी फर्म मार के उसके थ्रू लोन दे सकते हो। द अमाउंट ऑफ गारंटी कवर क्या है, मिनिमम 15 लाख टू 5 करोड़, मतलब 15 लाख से 5 करोड़ तक का कवर इसमें अवेलेबल है। द टेनियर ऑफ गारंटी अप टू 7 ईयर्स और रिपेमेंट पीरियड मींस मैक्सिमम 7 ईयर्स का रिपेमेंट कर सकते हो, क्योंकि गारंटी ही 7 ईयर्स तक अवेलेबल है। तो इस स्कीम का क्या मेन है, एम है कि आप जो लोन दोगे उसमें कोलेटरल नहीं लेना है, आपको गारंटी मिलेगी। ठीक है, और नोडल एजेंसी कौन है, वो गारंटी कौन देगा, IFCI गारंटी देगी अगेंस्ट लोन एक्सटेंडेड बाय माइक्रो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस मींस बैंक्स। ठीक है, टू बैंक or any financial institution to SC/ST entrepreneurs or the firms, the partnership firms, the proprietary firms that are promoted by SC/STs. Correct? Okay. मास्टर सर्कुलर ऑन क्रेडिट फैसिलिटीज टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज, अब ये स्कीम आया, मास्टर सर्कुलर ऑन क्रेडिट फैसिलिटी टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है, ये अर्लियर क्वेश्चन आ भी चुका है 2 और 3 के एग्जाम में। तो माइनॉरिटी कम्युनिटीज लिस्ट ऑफ 121 माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एट लीस्ट 25% ऑफ द मोर। ओके, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर 25% से ज्यादा माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, वहां पर स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी माइनॉरिटी कम्युनिटीज को दी जाती है। ओके, बट एक्सक्लूडिंग दोज वेयर दीज आर इन मेजोरिटी। मेजोरिटी का सिंपल मतलब होता है 51% से ज्यादा। ठीक है, ओके, कौन कौन से हैं मेजोरिटी में, कश्मीर में, पंजाब में, मेघालय में, मिजोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप, ये सब चीजें यहाँ पर ये। अच्छा, ये हो सकता है कि ये पूछ ले कि credit the scheme of credit facilities to minority communities is not applicable in पंजाब, यूपी, बिहार, MP, तो आपका आंसर होगा पंजाब। ठीक है, क्योंकि पंजाब में जो सिख माइनॉरिटी है, पंजाब में मेजोरिटी है। ठीक है, are advised to specifically monitor the credit flow to minorities in 121 districts, thereby ensuring the minority communities receive a fair and equitable portion credit within overall। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी कितनी आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट हैं, यही क्वेश्चन आया है। तो 121 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड है, आपको नाम डिस्ट्रिक्ट के नहीं याद रखना। 121 डिस्ट्रिक्ट के नाम कैसे याद रखोगे, कुछ लोग ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में सोच रहे होंगे 4-5 डिस्ट्रिक्ट याद कर लें, कोई डिस्ट्रिक्ट, ऐसा कुछ मत करो, नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, स्टेट्स जो जानते हो अब इसको ऐसे याद कर लो, ऐसे स्टेट्स जहां पर माइनॉरिटी मेजोरिटी में है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो या सिख हो। ठीक है, जैन तो कहीं है नहीं ऐसा, तो वो जो है ऐसे स्टेट्स, वहां पर ये स्कीम डिस्ट्रिक्ट वाइज लेवल पे नहीं लगाई जाती है। ठीक है, important to note that in terms of Reserve Bank's master circular direction on priority sector, a target of 40% of ANBC or equivalent, okay, it has been mandated for lending priority sector by domestic commercial banks and foreign banks। okay, तो foreign banks जिसकी 20 ब्रांचेस से ज्यादा हैं, उनके लिए है सेक्टर वाइज। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए प्रियोरिटी सेक्टर में यही टारगेट 75% का है। ठीक है, विद इन सब टारगेट ऑफ 12% ऑफ ANBC। नेक्स्ट वी विल बी मूविंग हाउ टू डिसाइड माइनॉरिटी इन केस ऑफ, ये आप अपने से पढ़ लेना, PDF शेयर करेंगे, जस्ट ये जनरल चीजें हैं। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म और कंपनी में डिसाइड। अच्छा, ये देखो, अभी SC/ST का बताया था ना कि SC/ST वाली फर्म है कि नहीं, कैसे डिसाइड, हाउ यू विल डिसाइड दैट दिस फर्म इज कंट्रोल ऑन
run by SC/ST. The same guideline is going to issue here. You study. Okay. Partnership firm, if the majority of partners belong to other specified minority communities, तो वो पार्टनरशिप फर्म माइनॉरिटी में जाएगी. सेम ऐसे SC/ST फर्म का होता है कि अगर मेजॉरिटी उसमें SC/ST है तो वो उसमें जाएगी. ठीक है. फर्दर देखो यहाँ पर दिया हुआ है, अ कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी एंड हेंस एडवांस. देखो अभी यही मैं पहले बता रहा था आपको. एडवांसेस ग्रांटेड टू इच कैन नॉट बी क्लासिफाइड एडवांसेस टू द स्पेसिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज. ओके. Company is separate legal entity, so in the same case, for SC/ST is also be true. ये इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा भी हुआ है, क्योंकि SC/ST पे SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम पे. SHG बैंक लिंकेज क्या है? जो सेल्फ हेल्प ग्रुप लेडीज फीमेल्स का बन रहा है, उसका बैंक में अकाउंट खोल दो या उसको किसी भी तरह का बैंक प्रोडक्ट से लिंक करो, वो SHG बैंक लिंकेज है. ओके. इसके बारे में मैंने अलग से पूरा ही PDF ही बना रखा है और ग्रुप में शेयर्ड है. आप उस PDF को सेपरेटली पढ़िए. मैं कहूंगा कि उसको कंप्लीट करिए. उसमें 20 क्वेश्चंस भी अलग से शेयर किए हैं. वो 20 क्वेश्चंस करिए. दैट्स इनफ. उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा. ठीक है. अब 20 क्वेश्चन वो पेड ग्रुप में है या उसमें है ये मुझे नहीं पता, बट मैंने शेयर किया. इफ एनी वन ऑफ योर फ्रेंड इज इन पेड ग्रुप, यू कैन कांटेक्ट मी एंड टेक मी. टिल दैट एग्जाम जोन 24/7 MCQ PDF is available or not. Okay. We will discuss only some important things about credit sanction guidelines. Lending. अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था, SBI CBO में ही आया था शायद, कि कोलेटरल फ्री लोन्स कितने तक का दे सकते हैं? 20 लाख तक का दे सकते हैं. ठीक है. 20 लाख तक कोई कोलेटरल नहीं चाहिए. मार्जिन ले सकते हो, मार्जिन के लिए गाइडलाइन है, और वो भी मार्जिन बैंक के ऊपर है. अगर बैंक चाहे तो विदाउट मार्जिन भी दे सकता है. ठीक है. ये क्वेश्चन SBI CBO में पिछले साल आया था. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं. 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके शेयर्ड हैं. आप पढ़ो, उसको शेयर करो, ग्रुप में ले लो. जिसको जानते हो, दोस्तों को जिनको चाहते हो कि आप सिलेक्ट हो जाए, उनको भी शेयर करो. एज पर ऑपरेशनल गाइडलाइंस इशूड बाय नाबार्ड SHG. अच्छा, नाबार्ड ही SHG को देखता है. ठीक है. नाबार्ड इज द मेन प्रमोटर, मेन मॉनिटरिंग अथॉरिटी. तो कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप RBI मत लगा देना. ये रेगुलेट होता है नाबार्ड से. ओके. SHG में भी सैंक्शन सेविंग इनटू 1:1 टू 1:4 के रेशियो में आप सैंक्शन कर सकते हो. देखो ये भी मैंने वीडियो डाल रखा है, डोज वाइज. फर्स्ट डोज कितना देंगे, सेकंड डोज कितना देंगे. ठीक है. प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग का वीडियो है, प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट 1. उसका अभी आप यूट्यूब में थंबनेल देखोगे, ग्रीन ग्रीन जैसा थंबनेल है. ठीक है. तो वो सब प्रियोरिटी सेक्टर 1, 2, 3 अदर्स में, प्रियोरिटी सेक्टर अदर्स में शेयर्ड है. उसका PDF भी ले लो और आप उस वीडियो को भी देख लो, क्योंकि वो रिसेंट गाइडलाइन पे ही बना है. इसके गाइडलाइन जो अभी अप्रैल में आई है उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. ठीक. नेक्स्ट, लोन्स में बी गिवन बियॉन्ड द लिमिट. ओके. अगर मैच्योर्ड SHG का मतलब क्या होता है? 6 महीने साल भर से इसका कोई मतलब नहीं है. इसका मतलब यह है कि उसने एक लोन लिया और उसको सक्सेसफुली रिपेड कर दिया, आप दूसरा देने जा रहे हो, वो मैच्योर्ड SHG है. मीन्स उसने अपने पूरे डोज लिए और उसने उसका रिपेमेंट कर दिया. फर्स्ट डोज दिया, कर दिया. सेकंड डोज दिया, कर दिया. थर्ड डोज दिया, कर दिया. अ सिंपल सिस्टम ऑफ रिक्वायरिंग मिनिमम डॉक्यूमेंट, मतलब मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर इसी के लिए नहीं है, KCC के लिए भी मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर का गाइडलाइन है RBI से. इंटरेस्ट रेट. अच्छा, ये कभी क्वेश्चन ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप सुनो. क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट ऑन SHG's बैंक कैन चार्ज. कुछ नहीं है. इंटरेस्ट का कोई गाइडलाइन है, बैंक अपने मन से चार्ज कर सकते हैं, बट एक्सेसिव नहीं होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं है कि आप 18%, 20% का इंटरेस्ट ले रहे हो. ठीक है. ये पुअर लोअर स्टेटा के पीपल हैं, तो इनको आप, जैसा आप, जिसमें आपका लॉस ना हो और आपके लिए भी अच्छा हो, उनके लिए भी अच्छा हो, ऐसा आप दे दीजिए. प्रेजेंस ऑफ डिफॉल्टर्स. SHG में डिफॉल्टर्स हो सकते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन आ सकता है. ये PDF में भी है. यस, हो सकते हैं. ठीक है. डिफॉल्ट बाय फ्यू मेंबर्स ऑफ SHG.
or their family members to the financing bank should not ordinarily come in the way of financing SHGs by bank. Okay, provided SHG is not in default. मतलब एसएचजी का जो लोन दिया है आपने, एसएचजी का अकाउंट खोला दे दिया, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है उससे मंथली पैसा नहीं जमा कर रहा है, वो डिफॉल्ट कर रहा है, तब भी आपको उस एसएचजी को फर्दर क्रेडिट देने से नहीं रोकना है। ये गाइडलाइन है कि जो आप फाइनेंस दोगे उससे उस डिफॉल्टेड मेंबर्स की हेल्प नहीं होनी चाहिए, मतलब वो फाइनेंस डिफॉल्टेड मेंबर्स के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, चलो, मास्टर सर्कुलर गारंटीज एंड को एक्सेप्टेंसेस, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, गारंटी कितने दिन के लिए देते हैं। ठीक है, तो 10 years अभी आगे आएगा, अभी पढ़ते हैं, उसमें डिस्कस करते हैं, आगे आ जाएगा। सर्कुलर इज बल्कि, वी विल गो थ्रू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओनली। इसका जो सर्कुलर है वो बहुत बल्कि है, तो इस वजह से इसको कंपाइल कर दिया, जो इंपॉर्टेंट है वही चीज। टाइप ऑफ गारंटी क्या है? बैंक में प्रोवाइड ओनली फाइनेंशियल गारंटी एंड नॉट परफॉर्मेंस गारंटी। ठीक है, फाइनेंशियल गारंटी, एक तो देखो परफॉर्मेंस गारंटी भी अल्टीमेटली फाइनेंशियल गारंटी में ही टर्न होती है, लेकिन ठीक है, लेकिन फिर भी बैंक को फाइनेंशियल गारंटी ही इशू करनी की। फाइनेंशियल गारंटी का मतलब ये हो गया कि अगर ये बंदा इतने पैसे नहीं देता है, परफॉर्मेंस गारंटी में होता है ये बंदा अगर ये काम नहीं करता है तो हम इतना देंगे। फाइनेंशियल गारंटी में ये है कि इसके ऊपर जो इसकी जो लाइबिलिटी बन रही है 1 लाख 2 लाख $3 लाख की, वो हम दे देंगे अगर इसने पेमेंट नहीं किया तो। ठीक है, अब इसमें हाउ एवर शेड्यूल्ड बैंक्स में इशू परफॉर्मेंस गारंटी, देखो ये लिखा भी है। ठीक है, सब्जेक्ट टू एक्सरसाइजिंग ड्यू पर्सन, बताया ना, परफॉर्मेंस गारंटी भी अल्टीमेटली फाइनेंशियल गारंटी में आ जाएगी, क्योंकि बैंक को देना पड़ेगा पैसा, बैंक को पैसा देना ही पड़ेगा। तो इस इस वजह से कहा गया है कि तुम सीधे फाइनेंशियल गारंटी इशू करो, कि कोई अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अच्छा अगर कमिटमेंट नहीं पूरा किया है तो वो जिस व्यक्ति का उसने गारंटी दी है वो कहेगा नहीं मैंने पूरा कर दिया, ये चीजें थी। ठीक है, और फिर उन चीजों को कंडीशंस को स्टडी करना अल्टीमेटली बैंकर को ही करना है, तो बैंकर को पूरा सिविल सिविल वर्क है तो सिविल वर्क देखे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या शिपिंग का है तो सिर्फ कितना बैंकर कितना देखेगा, तो दैट इज बेटर दैट फाइनेंशियल गारंटी इशू कर दो। लेकिन आरबीआई ने बोला है कि अगर कोई स्पेसिफिक कस्टमर है उसको परफॉर्मेंस गारंटी चाहिए, क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस गारंटी में क्या है, अगर उसने अपना काम करके दे दिया तो काम खत्म, उसका काम अच्छा चल रहा है टू द बेस्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन, दैट इज गुड। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये जान लो, एलसी बैंक के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसमें बहुत सारे आप चार्ज करते हो पैसे, 1-1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख, और आपका फंड इन्वॉल्वमेंट जीरो होता है, जनरली जीरो होता है। ठीक है, बैलेंस शीट के एक्सपोजर में भी वो नहीं आता है उतना, अदर लाइबिलिटीज में आप डाल सकते हो, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज में डाल सकते हो, हाँ नोट टू अकाउंट्स में आ जाएगा, बट उसमें नहीं दिखता है कि आपका एक्सपोजर, रिस्की एक्सपोजर यहाँ पे इतना है। अब आगे बढ़ते हैं, नॉर्म्स फॉर अनसिक्योर्ड एडवांसेस एंड गारंटीज, वो आगे देखते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड चीजें हैं। घोष कमेटी रिकमेंडेशंस, ओके, तो अगर ये पूछा जाए कि विच कमेटी मेड द some recommendation regarding the guarantees and co-acceptances, तो आपका आंसर हो जाएगा घोष कमेटी। ठीक है, चलो आगे आते हैं। आरबीआई गवर्नर, ठीक है, डिप्टी गवर्नर थे उस समय, 1991 में हुआ था, तो क्या हुआ, अनअकाउंटेड इशू ऑफ गारंटीज, मतलब बहुत सारे गारंटीज ही ना इशू करें, एज वेल एज फेक गारंटीज, बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं, अभी उनका चल ही रहा है, कोई वापस तो आया नहीं इंडिया। ठीक है, लेटर ऑफ कंफर्ट इशू कर रहे हैं, एज सजेस्टेड बाय आईबीए बैंक गारंटी शुड बी इशूड इन सीरियली नंबर्ड सिक्योरिटी फॉर्म्स, मतलब अगर सीरियल नंबर रहेगा बैंक का, जैसे मैंने लिखा ए सी की सीरीज है, ये कोई एक स्पेसिफिक कोड है जिसके लिए 1, दूसरी गारंटी हुई AC2, या मान लो पीएनबी का गारंटी है, उसने लिखा पीएनबी बीजी, यहाँ ब्रांच कोड लिख दिया 14, गारंटी नंबर लिख दिया 1,
तो ये इस बैंक का कोड हो गया, ये सीरियल नंबर के हिसाब से। अब 1 2 3 मतलब ऐसे। अच्छा, अगर अब बैंक ऐसे इशू करे CXJ353 अपने आप नंबर आ रहा है, फिर कुछ आ गया C2X546, तो आप बता पाओगे क्या कि इसके इसके बीच में बैंक ने कितनी गारंटी इशू करी? नहीं। इस वजह से ये प्रिकॉशन लेना जरूर बोला कि सीरियल नंबर। अब क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में? bank guarantee issue from to be issued from a bank in a serial number, not necessarily in a serial number, can be in a serial number or not in a serial number, it is up to the bank. Further none of these, तो आपको लिखना है कि in to be issued in a serial number only। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक तो फेक गारंटी का भी हो जाएगा, 3 नंबर के दो नहीं है, 3 नंबर की जो गारंटी है वो एग्जीक्यूट हुई या अभी पेंडिंग आउट स्टैंडिंग है, ठीक है, वो चीजें बचाना। दूसरा क्या है, बैंक शुड while forwarding guarantees caution beneficiary that they should in their own interest verify the genuineness of guarantee। मतलब जिस बंदे ने बोला है, मान लो ये बंदा है और ये दूसरे बंदे को कुछ सामान सप्लाई कर रहा है, इसको बैंक गारंटी चाहिए, इसने सामान सप्लाई कर, अब इसके पास जब बैंक गारंटी पहले जाती है, तो आरबीआई ने बोला है कि बेनिफिशियरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एडवाइस किया जा रहा है कि आप इसको एक बार जेन्युइननेस बैंक थ्रू, अब ये इस बैंक को थोड़ी आएगा, ये किसी करस्पॉन्डेंट बैंक या अपने ही बैंक को देगा कि आप पता लगाओ, तो बैंक टू बैंक कम्युनिकेशन से ये पता लग जाएगा ये है कि नहीं है। ठीक है, गारंटीज ऑन बिहाफ ऑफ बैंक्स डायरेक्टर्स, देखो, अब देखो ये सेक्शन याद रख लो, सेक्शन 20 आप बैंकिंग रेगुलेशन। अब से देखो कुछ लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, जो पढ़ा रहे हैं आपको इतने बैंकिंग के सेक्शन पढ़ा देंगे, उतने बैंकिंग सेक्शन तो बैंक में जो प्रमोशन का एग्जाम दे रहे हैं वो नहीं पढ़े होते हैं। क्यों इतने सेक्शन पढ़ रहे हो? नहीं आए सेक्शंस, वो पढ़ो जिसके थ्रू कोई सर्कुलर इशू हुआ है, कोई इवेंट हुआ है, वही पूछेगा, और बाकी के सेक्शंस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आया सेक्शन 20 ऑफ बीआरए, क्या करता है भाई? एवरीवन नोज की लोन्स एंड एडवांसेस अपने डायरेक्टर्स को नहीं दे सकता, और एनी फर्म जिसमें उसका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का मतलब उसका शेयर है, ठीक है। लेकिन जो गारंटी है वो फंड बेस्ड फैसिलिटी तो है नहीं, एक्चुअल में तो पैसा दे नहीं रहा है बैंक, इस वजह से गारंटीज को उस फैसिलिटी में नहीं इंक्लूड किया जा सकता। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, बैंक्स कैन नॉट इशू ए लोन टू डायरेक्टर्स, बी गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टर्स और टू द डायरेक्टर्स, ठीक है, फॉर द डायरेक्टर्स ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक, ठीक। सी बोथ, डी नन ऑफ दीज। आप बोथ लगा के चलिए आओगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए नहीं है, हालांकि ये दिस हैज आल्सो बीन इंस्ट्रक्टेड बाय आरबीआई दैट बैंक शुड टेक मच काशन व्हाइल इशूइंग द गारंटी। इसमें और भी डिटेल है, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, कुछ नहीं है, सिंपल, उसमें मुझे समझाने जैसा इसमें कुछ नहीं है, जो मुझे बताना था मैंने बता दिया, बट सर्कुलर इज इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ना है। एक डायरेक्टर को मैक्सिमम कितना लोन अमाउंट दे सकते, ठीक है, कितने करोड़ का दे सकते, ठीक है। अर्लियर लिमिट सबको पता होगा, नया लिमिट रिवाइज्ड आप देख लेना, ये क्वेश्चन आया भी था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिसेंटली हुआ था, 1 महीने पहले शायद। टाइम लिमिट, टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ो। कोई भी गारंटी है, मैंने स्टार्ट में बताया था 10 साल से ज्यादा का नहीं, बट बैंक कैन इशू, ठीक है। तो अब ये पूछोगे कि अगर क्वेश्चन आया कि कितने साल के लिए इशू किया जाता है, नॉर्मल इज 10, आपको 10 आंसर लगाना है, ठीक है। इट हैज बीन डिसाइडेड दैट to issue guarantee for beyond 10 years. While issuing such guarantee, bank are advised to take into account the impact of very long duration guarantees on their asset liability management. ठीक है, चलो मैंने मान लिया को 50 लाख का, 50 करोड़ का उसने गारंटी दिया 11 ईयर्स का, ठीक है। बट 11th ईयर के लिए उसने अपना एसेट लाइबिलिटी इस तरह से मैनेज नहीं किया, अगर ये लाइबिलिटी अगर एराइज होती है बैंक की, तो उसके लिए उसके पास असेट्स होंगे कि नहीं, जिनको रियलाइज करके ये 50 लाख पे करेगा। बारोवर जिसने गारंटी इश्यू करवाया उससे तो बाद में बैंक लेगा ना। अच्छा दूसरा देखो,
अगर किसी बैंक ने गारंटी इशू किया है और वो गारंटी रिवोक होती है तो बैंक को इमीडिएट पेमेंट करना होता है, लेट नहीं कर सकता। लेकिन बारवों की रिकवरी में आप देखो, रिकवरी में 5-5 6-6 साल भी लग जाते हैं। कम से कम 1 साल तो लग ही जाता है, जैसा पब्लिक सेक्टर बैंक का क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया मतलब फॉलो अप का प्रोसीजर। ठीक है। और 3-4 महीने तो उसका वैसे ही लग जाएगा, प्रॉपर्टी का ऑक्शन कराने में या पोजीशन लेने में, उसको सेल करने में। तो लेकिन जो गारंटी कराया है जिसने, तो वो उसको तो पैसा चाहिए तुरंत, तो उसको आरबीआई के भी गाइडलाइंस है, विदाउट एनी डिले आपको पेमेंट करना, एंड नो क्वेश्चंस आस्क्ड। मतलब आपको पूछना नहीं है कुछ उससे, उसने कहा कि गारंटी के थ्रू आपको पैसा देना है तो आपको पैसा देना है। लिमिट फॉर अनसिक्योर्ड एक्सपोजर रिलेटिंग टू बीजी। अच्छा, अनसिक्योर्ड एक्सपोजर ने एनपीए में भी पूछा जाता है, जान लो। 10% से ज्यादा, अगर आपका 100 रुपए का लोन है और सिक्योरिटी की वैल्यू 10 रुपए से कम है, ठीक है, तो देखो 10%, तो उसको अनसिक्योर्ड एक्सपोजर, ठीक है, इज नॉट मोर देन 10%, ठीक है। अच्छा, 10 रुपए हो या उससे कम हो, 10 हो तब भी वो अनसिक्योर्ड रहेगा, याद रखो। एग्जाम में यही कंफ्यूजन होगा। आप 10% जाओगे, वहां 9% रहेगा, तो आप सोचोगे नहीं नहीं 10% से तो स्टार्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, 10% तो होगा सिक्योर्ड में, 10 से कम नहीं होगा, आप 9 लगा। 10, अगर 10 है या उससे बिलो है तो वो अनसिक्योर्ड एक्सपोजर है। 10 to 50 है तो वो डाउटफुल इमीडिएट क्लासिफाई करो, ठीक है। 10 से कम, अच्छा, इसी को अनसिक्योर्ड बोलते हैं। और रियलाइजेबल अगर कम हो गया तो इसी को लॉस भी बोलते हैं, लॉस असेट। अगर असेट की वैल्यू में एनपीए में है ये, को बहुत सारे पीडीएफ हमने टेलीग्राम में शेयर किए हैं, आप मन से पढ़ोगे, मैं बता रहा हूं आपको, आप टॉप कर जाओगे। एसबीआई सीबीओ या जीबीओ जो भी एग्जाम दे रहे हो, आप टॉप कर जाओगे, इतना कंटेंट है। 100 जगह से कंटेंट, मतलब एक कंटेंट को कम से कम पूरा पढ़ो तो। गारंटीज ऑन बिहाफ ऑफ शेयर ब्रोकर्स एंड कमोडिटी ब्रोकर्स शुड अवॉइड बट बैंक में इशू। ओके, तो ये आप अपने से पढ़ लेना पीडीएफ। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने को है, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने अभी बता दिया आपको, उतना ही पढ़ना है, ठीक है। बैंक में इशू गारंटीज फेवरिंग अदर बैंक्स और नॉट, ये क्वेश्चन आ सकता है। यस, बैंक कैन इशू, क्या एक बैंक दूसरे बैंक के को गारंटी इशू करता है? हाँ, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट तो पढ़ा होगा ना। जो स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, क्या है, एक कंफर्मेशन बैंक से जो लेते हैं, हाँ अगर ये दूसरा बैंक नहीं दिया तो आप, तो दैट इज आल्सो फॉर्म ऑफ गारंटी। तो बैंक अदर बैंक्स और एनबीएफसी को, ठीक है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को गारंटी इशू कर सकते हैं, ठीक है। क्या है, द गारंटी इशूइंग बैंक शुड एज्यूम ए फंडेड एक्सपोजर एट लीस्ट 10% ऑफ द एक्सपोजर गारंटी। अच्छा, जैसे 100 रुपीज का उसने किसी बैंक के लिए गारंटी दिया, इस बैंक ने किसी और को दिया हुआ है, तो ये इसका 10% मतलब 10 रुपए फंडेड एक्सपोजर में आएगा, ये फंडेड एक्सपोजर में आएगा, एज्यूम, ठीक है। दूसरा, अगर ये बैंक खुद ही इशू कर रहा है तो इसका फंडेड एक्सपोजर 0 होगा, मतलब ये फंडेड एक्सपोजर में नहीं आएगा। ये चीज आपको समझनी थी, ये मैंने बता दिया, बाकी आप पढ़ सकते हो। मास्टर सर्कुलर ऑन गारंटी एंड को एक्सेप्टेंस लेट, देखो, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का टीयर वाइज क्लासिफिकेशन एवरीथिंग ग्रुप में शेयर्ड है, आप पढ़ो, टेलीग्राम ग्रुप में है वो, ठीक है। और दैट इज नॉट पेड, दैट इज फ्री, तो आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ गारंटी ऑब्लिगेशन आउट 10% ऑफ द टोटल ऑन्ड रिसोर्सेज, ठीक है। मास्टर सर्कुलर ऑन गारंटी एंड को एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ओके। टोटल वॉल्यूम ऑफ गारंटी ऑब्लिगेशंस आउटस्टैंडिंग एट एनी टाइम मे नॉट एक्सीड, ठीक है, आप लिख रहे 10% ऑफ द टोटल रिसोर्सेज द बैंक ऑन्स, ओके। फर्दर, रिजर्व एंड डिपॉजिट्स, जितना भी उसके पास पेड अप कैपिटल रिजर्व डिपॉजिट है उसका 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
outstanding at any time may be limited to an amount equivalent to 25% of owned funds। अब इसको इस देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, इसको मैं बताता हूँ। जैसे इस बैंक के पास एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था, इसके पास 1,000 करोड़ का टोटल पेड अप रिजर्व डिपॉजिट मिला के 1,000 करोड़ है। इसने बोला 10%, 10% मतलब 100, ठीक है, 100 ही तो हुआ, 1,000 करोड़ का 100 करोड़, 100 करोड़ का एक्सपोजर दे सकता। अच्छा, अब इसमें मैं कह रहा हूं इसका जो है 40 करोड़, 40 करोड़ इसका ऑन्ड कैपिटल था, पेड अप कैपिटल और जो रिजर्व, ठीक है। पेड अप कैपिटल मतलब जो उसने इक्विटी में लगाया हुआ उसके प्रमोटर्स ने, और रिजर्व उसने बना के रखा है वो 40 करोड़ ही है, बाकी सब डिपॉजिट और अदर चीज है। तो इसका 25% मतलब 40 का 25% 1/4 हो गया। देखो थोड़ा परसेंटेज सीखो, मेरा कोर हमेशा मैथमेटिक्स ही रहा है, तो मुझे पता है ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं 25%, 100 का 25 मतलब 100 को 4 पार्ट में हो गया तो ये 1/4 हो गया, ठीक है। 10 करोड़ है। अब देखो 25% ये या 10% ऑफ वो, ठीक है, विच एवर इज लेस। तो इन दोनों में से लेस कौन सा आ रहा है? 10 करोड़, तो इसका एक्सपोजर कितना होगा? 10 करोड़। ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसका 1,000 करोड़ था वो 10% मतलब 100 करोड़ नहीं, बल्कि इन प्लेस ऑफ दैट 40 करोड़ जो कि उसका पेड अप और फेयर रिजर्व था उसका 25% यही दे सकता है और यही होगा। ओके, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। क्या बैंक को इंश्योर करना है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। बस एक जनरल व्यू ले लेना, पूरा याद करने की जरूरत नहीं, जो आपको चाहिए था वो मैंने बता दिया। अभी आपको एग्जाम में पूछेगा कि 10% ऑफ दिस, तो ये याद रखना, ये लाइन बिटवीन द लाइंस पढ़ो ना। आप कंप्राइजिंग टोटल पेड अप 10% में जब आएगा तो ये सब आएगा। अब वहां पे लिखा रहेगा 10% ऑफ पेड अप कैपिटल, तो ठीक है, रिजर्व, ये सब लिखा होना चाहिए। और 25% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ गारंटीज, ठीक है, आप 20 टू द ओन्ड फंड्स of the 25% of the total amount of guarantees whichever is less। okay, बैंक should preferably issue secured guarantee। okay, secured guarantee मतलब जितने का गारंटी है कम से कम उतने का उसके पास कोलेटरल अवेलेबल है, टेंजिबल फॉर्म। ओके, एलसी के बारे में है, ये पूरा पढ़ लेना। एलसी के बारे में पीडीएफ नहीं है, एक वीडियो पेड ग्रुप में शेयर्ड है, वो मैं पब्लिक शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लेना उसे, ठीक है। फर्दर ये मास्टर सर्कुलर नेक्स्ट क्या है? ओके देखो, फॉर अदर थिंग्स गेट स्पेसिफिक पीडीएफ ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शेयर इन टेलीग्राम ग्रुप, आप ले सकते हो। ये पब्लिक इशू है, फ्री पीडीएफ है, अवेलेबल है। मास्टर सर्कुलर प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन इनकम रिकॉग्निशन, ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट है एनपीए क्लासिफिकेशन के लिए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? बैंक में परफॉर्मेंस का मतलब होता है पैसा जनरेट करना। नॉन परफॉर्मेंस मतलब कोई चीज पैसा नहीं दे रही, मतलब वो लोन, पैसा कौन देगा? लोन लेने वाला। लोन लिया मतलब लोन जो दिया गया है वो वापस पैसा नहीं दे रहा है। अच्छा, पैसा जो लिया है वो कैसे आता है? एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है, एक इंटरेस्ट अमाउंट होता है। तो जो इंटरेस्ट अमाउंट है वही बैंक की एक्चुअल इनकम है, प्रिंसिपल अमाउंट उसने दिया है वही वापस आ रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट अमाउंट या बोथ, अगर कोई भी नहीं दे रहा है तो वो एनपीए में आता है, लेकिन कब तक? ओके, 90 डेज, 90 डेज। ओके, अब देखो इसमें 89 और 90 दे दिया, आप कंफ्यूज हो जाओगे, एग्जाम में इस कंफ्यूजन को दूर कर लो। 90 डेज तक तो उसे एनपीए होना ही नहीं है। 90 डेज का मतलब 3 मंथ बोल सकते हो, क्योंकि जो बैंकिंग टर्म्स है ना, जो इंटरनेशनल टर्म्स हैं उसमें 360 डेज का ईयर माना जाता है, जिसको 12 में डिवाइड कर दो 30 डेज का एक मंथ माना जाता है। तो 90 डेज का मतलब, अच्छा चलो, एक मंथ 30 का पड़ा, दूसरा 31 का, तीसरा 30 का, तो ये तीसरे मंथ में ही एनपीए हो जाएगा, वो 3 मंथ नेक्स्ट मंथ नहीं होगा। समझ में आया? क्योंकि 91 डे हो जाएंगे इसमें।
चलो, तो 91st डे वो एनपीए होगा। इसका इस पे एमसीक्यू शेयर्ड है, इस पे वीडियो भी शेयर्ड है, आप इनकम रिकॉग्निशन का वीडियो देखिए। या बिल, कोई भी बिल जो कलेक्शन के लिए आता है, अगर वो ओवर ड्यू रह गया तो वो एनपीए में आएगा। ठीक है। द अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी, ये केसीसी क्रॉप सीजन के लिए, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए 2 क्रॉप सीजन, और लॉन्ग टर्म के लिए 1 क्रॉप सीजन तक अगर ये पेमेंट नहीं हुआ है, 1 क्रॉप सीजन बीत गया, दूसरा क्रॉप सीजन आ गया, तब वो एनपीए होगा। इसीलिए जो लोग बैंक में काम करते होंगे उनको पता होगा, अगर आप केसीसी लोन दे देते हो तो कभी कभी 3 साल तक तो एनपीए ही नहीं होता, वो चौथे साल में जाके होता है। तो केसीसी के लिए उतना टेंशन नहीं है। आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर सीसी और ओडी अकाउंट के लिए होता है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन सीसी ओडी अमाउंट्स रिमेन्स कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन लिमिट फॉर 90 डेज। ओके, 90 डेज का मतलब है 90 डेज के बाद जाना चाहिए, 91st डे, 19th डे तो नहीं होगा। ठीक है। आउट रिमेन्स इन इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन, जैसे मान लो आपने 5 लाख का उसको लिमिट दिया, उसने 5 लाख रुपए निकाल लिए, अगले महीने इसमें इंटरेस्ट लगेगा, मान लो 5 लाख हो गया और 1000 हो गया, 5 लाख 1000। ठीक है। अब ये अगर कंटिन्यूअस अगले मंथ भी पैसा नहीं डाला, अगले मंथ भी पैसा नहीं डाला, 90 डेज बीत गया, एक्सेस में रहा लिमिट से, जितना आप उसको लिमिट दिए हो तब ये। ठीक है, सैंक्शन लिमिट से फर्दर अगर उसने 4 लाख रुपए निकाले और 1 लाख इसमें रहा, तो क्या होगा? तो इसी से वो इंटरेस्ट अमाउंट कटता रहता है ना। हाँ, इस वजह से। लेकिन डिपॉजिट भी आना चाहिए, जितना इंटरेस्ट लग रहा है, अगर उससे कम डिपॉजिट आ रहा है तब भी एनपीए क्लासिफाई हो जाएगा, नहीं तो ऐसे ऐसे कटता रहेगा, फिर तो कभी एनपीए नहीं होगा। द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन सीसीओडी इज लेस देन द सैंक्शन, ओके, बट देयर आर नो क्रेडिट्स कंटिन्यूअसली फॉर 90 डेज। देखो, 90 डेज तक या तो उसमें पैसा नहीं आए, आपने 5 लाख का दिया, उसने 4 ही लाख निकाले, छोड़ दिया, 1 लाख से इंटरेस्ट कटता रहेगा, तो ऐसा नहीं है। उसमें पैसा भी आना चाहिए। अगर 1000 मंथली इंटरेस्ट आता है तो 3 महीने में टोटल 3000 रुपए हुए, 3000 रुपीज हुए। तो उस 3000 से ज्यादा आना चाहिए, मतलब मिनिमम 3001 रुपी क्रेडिट आएगा, तभी ये एनपीए से बचेगा, नहीं तो ये एनपीए हो जाएगा। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसको कहते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। अगर ऐसा हो गया तो मतलब नहीं डाला, तो अगर उसने ज्यादा डाल दिया तो हो जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट अगर कवर नहीं हो रहा 90 दिन का तो। ठीक है, चलो। डिफिनेशन ऑफ आउट ऑर्डर एज शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल लोन प्रोडक्ट्स में एज एन ओडी, तो ओडी है तो उसमें भी लग जाएगा, सीसी है तो उसमें भी लग जाएगा। ओवर ड्यू, ओवर ड्यू का मतलब होता है कि अगर 1 तारीख को ईएमआई ड्यू है और 1 तारीख को पेमेंट नहीं हुआ तो वो ओवर ड्यू हो जाएगा। इसका सिंपल सा लाइन समझ लो बस। अच्छा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इज नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है। इनकम रिकॉग्निशन पॉलिसी ये है कि एक्रूवल बेसिस पे हम नहीं करेंगे, जैसा हमें इनकम आएगा वैसा करेंगे, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड इस केस में प्रोवाइडेड नहीं बोल सकते, वो तो एनएससी और इन सब के केस में। ठीक है, अगर आप गोल्ड लोन या ऐसा कुछ दे रहे हैं तो। ठीक है, अगर सफिशियंट मार्जिन अवेलेबल है तो। हालांकि गोल्ड लोन के केस में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप मंथली उसमें कर दोगे पेमेंट और इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, फिर पेमेंट नहीं हुआ ना, तो उस केस में भी नहीं होता है। केवल टर्म डिपॉजिट, क्योंकि ये लिक्विड है। नेशनल सेविंग सर्विस ये भी बहुत लिक्विड है, आप उसको ब्रेक करके। किसान विकास प्राप्त, जब तक ये आपके पास पैसा ही रखा हुआ है, ये आप जाकर के पोस्ट ऑफिस से जहां से लिया है वो दे दोगे तो आपको ओडीडी बना के दे देगा, अगले दिन रियलाइज कर लो। तो जब तक इसमें मार्जिन अवेलेबल है तब तक इसको एनपीए क्लासिफाई नहीं करते हैं, चाहे उसमें 90 डेज तक ऑर्डर में है नहीं है क्या है। एक आपने मान लो सीसी दिया टर्म डिपॉजिट के अगेंस्ट, उसमें 90 डेज तक पैसा नहीं आया तो सीसी तो एनपीए हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो टर्म डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन दिया, ठीक है, 10 लाख का टर्म डिपॉजिट था, 50,000 का लोन दिया, तो ये तो हमेशा कवर्ड है ना, तो उसको एनपीए क्लासिफाई आपको नहीं करना है। ठीक है, उसके केस में ऐसा नहीं।
नेक्स्ट चलते हैं, एसेट क्लासिफिकेशन, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। ठीक है, और स्टैंडर्ड लिख दो एक तरह से, एक स्टैंडर्ड होता है, सब स्टैंडर्ड मतलब अकाउंट अच्छा चल रहा है। स्टैंडर्ड में कैटेगरी होती है SMA 0, SMA 1, SMA 2, मतलब ये बताता है कि भाई स्टेज में चल रहा है। SMA 2 के बाद सीधे वो सब स्टैंडर्ड होगा, मतलब NPA हो जाएगा, 90 डेज बीत गया। ठीक है, अब 1 ईयर तक वहीं रहेगा, उसके बाद डाउटफुल में आ जाएगा। लॉस के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, लॉस के लिए तब होता है कि जब बैंक ये मान ले कि अब इसकी रिकवरी किसी तरह से पॉसिबल नहीं है, ना तो इसमें ऐसे कोलेटरल्स हैं जिसके थ्रू हम रियलाइज कर सकते हैं। बैंक उसे अगर मानती है तो उसको लॉस क्लासिफाई, नहीं तो डाउटफुल 3, DA 3 में पड़ा रहता है। इनकम NPA पे वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, हम इसको जल्दी से आगे खत्म करेंगे। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, ये ज्यादा स्टैंडर्ड आउटपुट मैंने बता दिया शॉर्ट में, आपके लिए उतना बेटर है। एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम अरेंजमेंट, मतलब बहुत सारे बैंक अगर लोन लेकर के दे रहे हैं, ठीक है, तो ये देखो, ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसेट क्लासिफिकेशन अमाउंट अंडर कंसर्ट शुड बी बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी इंडिविजुअल। यहाँ पर मान लो SBI है, PNB है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसने 10 करोड़ का, इसने 5 करोड़ का, इसमें इसने भी 5 करोड़ का लोन दिया है। ठीक है, इसके यहाँ ओवर ड्यू है 45,000, इसके यहाँ ओवर ड्यू है 3 मंथ्स का, और इसके यहाँ 12,000, इसके यहाँ 12,000, मान सपोज दैट, बस बंदे ने यहाँ पर पेमेंट कर दिया और यहाँ पर नहीं किया, तो ये कंसोर्टियम लोन, मतलब लोन एक ही है, बट इसके पास NPA हो जाएगा और इसके यहाँ वो स्टैंडर्ड दिखाएगा। ओके, मतलब ईच मेंबर जिस तरह से रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी होगा, उसका क्लासिफिकेशन उसी बेस पे होगा। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का जो है NPA कैसे करते हैं, ये सिंपल है, वैसे ही लिखा हुआ है, अनपेड 90 डेज और मोर। ठीक है, तो उसको भी आप पढ़ लेना PDF से। फर्दर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एक एक व्यक्ति ने, मान लो एक ये बंदा है, इसने एक हाउसिंग लोन ले लिया है, ठीक है, और एक इसने कार लोन ले लिया है। ठीक, तो हो गई इसकी कार। अब हाउसिंग लोन का इसने पूरा EMI क्लियर रखा है, इसका 3 EMI से ज्यादा हो गया, मतलब 90 डेज से ज्यादा हो गया, तो ये तो NPA हो गया, ये स्टैंडर्ड है। लेकिन अब बैंक को एक बार ओवर का अगर एक अकाउंट NPA है, तो उस बार ओवर के सभी अकाउंट NPA माने जाएंगे। ठीक है, बार ओवर वाइज क्लासिफिकेशन होता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी चीजें आप अपने से पढ़ सकते हो, इसलिए हम PDF में छोड़ रहे हैं, और MCQ का टेस्ट होगा तो उसमें ये चीजें मैं पूछूंगा जो इसमें है, तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट और एडवांसेस टू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ये सिंपल है, जैसा एग्रीकल्चर कृषि सोसाइटी को जैसा लोन दे रहे हो, वैसा इंडिविजुअल का वैसा ही क्राइटेरिया है, सेम, कोई चेंज नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म है तो 2, और लॉन्ग टर्म है तो 1, तो उसके भी थ्रू आप जान सकते हो कि NPA है कि नहीं है। ठीक है, अकाउंट वेयर इज इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, अगर 10% से कम ही रहा तो ठीक है। अच्छा, फ्रॉड है तो सीधे उसको 100% प्रोविजनिंग आपको करनी पड़ेगी। असेट क्लासिफिकेशन टू बी बारोवर वाइज, वही अभी अब जो कार लोन और हाउसिंग लोन का कॉन्सेप्ट दिया था ना, उसका दोनों NPA हो जाएगा, वो ऐसा ही है, इसी बारे में बताया गया, इसको आप डिटेल में पढ़िए। ओके, नेक्स्ट, मास्टर सर्कुलर गवर्नमेंट बिजनेस एजेंसी कमीशन पेमेंट एजेंसी बैंक्स। ओके, किस किस केस में आपको कमीशन मिलता है वो ठीक है, ये देख लो। दूसरा, इसमें ये देखो, नोट दैट स्मॉल सेविंग स्कीम विच इज ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्मॉल सेविंग स्कीम्स का जो भी आप एजेंसी कमीशन आता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करती है। बाकी जो कमीशन एजेंसी कमीशन आता है, जैसे कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो उसके लिए RBI आपको कमीशन पेमेंट करता है। ठीक है, रेट फॉर एजेंसी कमीशन, ठीक है, फिजिकल मोड में अगर रिसिप्ट ले रहे हो तो 40 रुपीज है, ई मोड में है तो 9 रुपीज है, पेंशन का पेमेंट कर रहे हो तो 75 रुपीज मिलता है। ठीक है, अदर देन पेंशन का कर रहे हो तो 100 रुपए पे
ठीक है, पर 100 रुपए पे 6.5 पैसे मिलता है। ये रुपए नहीं है, 6 रुपए नहीं, पैसे है। ठीक है, इसमें 100 से डिवाइड करोगे तो 0.06 आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा यहाँ। फर्दर मास्टर सर्कुलर ऑन हाउसिंग फाइनेंस। हाउसिंग फाइनेंस में देखो, एक चीज हम बता दें, इससे पहले जो एलटीवी रेशियो चल रहा था उसके लिए केवल दो कैटेगरी थी, अभी वो बंद हो गया। अभी फिर से पुराना वाला एलटीवी रेशियो चल रहा है। अब तो 30 लाख है अगर लोन टू वैल्यू रेशियो। ठीक है, तो रिस्क वेट अगर 80 से कम है लोन टू वैल्यू रेशियो तो रिस्क वेट उसका 35% लेंगे। अगर 80 से 90 के बीच में है तो उसका 50% रिस्क वेट होगा। ठीक है। अच्छा, 30 से 70, अब तो 30 लाख का है। 30 से 75 लाख के लिए अगर लेस देन 80%, 80%, तो उसका 35 पर मतलब 30 लाख टू 75 लाख। ठीक है, तो आप देख रहे हो 35% ही है। लेकिन अगर 75% से 75 लाख से ज्यादा है और उसकी एलटीवी 75 से कम है तो 50%। इस तरह से ये रिस्क वेट है, आप इसको पढ़ सकते हो। कमर्शियल रिटेल के लिए सिंपल सा है, कुछ गाइडलाइन नहीं लिमिट के, और वो 75 है। ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है कि पहले हाउसिंग इंडिविजुअल हाउसिंग लोन के लिए केवल दो कैटेगरी थी, वो only two categories, but you may leave it and continue with the classification only. करंट क्लासिफिकेशन जो है रिस्क वेट का वो पढ़ लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस फॉर डिसाइडिंग वैल्यू ऑफ, देखो हाँ ये आ सकता है एग्जाम में, अगर लोन टू वैल्यू कैलकुलेशन में रजिस्ट्रेशन फी, स्टाम्प फी इंक्लूड करते हैं कि नहीं, करते भी नहीं करते हैं। हाउएवर सच केसेस वेयर कॉस्ट ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स, मतलब अगर घर की टोटल कास्ट ही 10 लाख रुपए से कम है तो उसको आप इंक्लूड कर सकते हो एलटीवी वैल्यू रेशियो में, मतलब वो कास्ट को हाउसिंग के वैल्यू में इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो आप उसको, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी बैंक शुड नॉट इंक्लूड स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस। लेकिन अगर 10 लाख तक आ रहा है सब कुछ ऐड करने पे तो आप उसको ऐड कर सकते हो। अच्छा, इससे फायदा किसका है? इससे फायदा बैंक का है, क्योंकि रिस्क वेट ज्यादा होगा तो रिस्क वेट के लिए उसको कैपिटल ज्यादा रखना पड़ेगा बेसल नाम्स की वजह से। तो इस वजह से बैंक को चाहिए, या आप लोग भी, अगर वो 10 लाख तक का आ रहा है या वैल्यूअर ने उसकी वैल्यू 3.5 लाख लिखी, तो आप स्टैंपिंग और रजिस्ट्रेशन का जो चार्जेस है आप उसको ऐड करके अपना एक डेस्कटॉप वैल्यूएशन बना के लोन की फाइल में लगा के उसमें लगा दो, इससे आपके बैंक का फायदा होगा। करेक्ट। छोटी छोटी चीजें आपको जानना चाहिए। बैंक फाइनेंस टू एनबीएफसी। ओके, तो बैंक फाइनेंस टू एनबीएफसी मतलब नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज को ऑन लेंडिंग के लिए देना। ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गई। ठीक, तो ये आप पढ़ लेना अपने से, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं, बट आपको जाना चाहिए। प्रूडेंशियल एक्सपोजर फॉर एनबीएफसी विल बी, ये इंपॉर्टेंट है, बैंक एक्सपोजर शुड बी लिमिटेड टू एनबीएफसी 20% ऑफ देयर एलिजिबल। हाँ, ये समझा देता हूँ आपको। बैंक अगर किसी एनबीएफसी को लोन दे रहा है तो 20% ऑफ दियर एलिजिबल कैपिटल बेस ही दे सकता है। ऐसा नहीं कि वो सभी अपना जितना भी लोन, जैसे उसका एलिजिबल कैपिटल बेस 100 करोड़ का है तो एनबीएफसी को ऑनलाइन मैक्सिमम वो 20 करोड़ ही दे सकता है। ओके। एनबीएफसी आप ग्रुप, अगर इंडिविजुअल आप ग्रुप कनेक्टेड टू 5%। अच्छा देखो, जो ये लिमिट होती है ना, डायरेक्टर और बोर्ड को पावर है को 5% तक बढ़ा सकते हैं, तो 20 वाला 25 हो सकता है और 25 वाला 30 हो सकता है, बट एज ए जनरल रूल इट इज 20%। ऑन सोलो बेसिस, ऑन ए ग्रुप बेसिस इज 25%। लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क आप पढ़ सकते हो। ठीक है, द एक्सपोजर ऑफ बैंक टू द एनबीएफसी इज प्रिडोमिनेटली engaged in the lending against collateral gold jewelry comprising of 50% or more of their assets shall not be exceed to 7.5% of capital। लेकिन अगर वही एनबीएफसी केवल गोल्ड, जैसे मुथूट फाइनेंस है, इन सब में करती है तो 7.5% तक ही दे सकते हो। ये आप हर पॉइंट पढ़ लेना, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके। Internal sublimit aggregate by all FCs having gold loan should to extent of 50% or more their financial assets। अच्छा देखो, कैसे आपको पता चलेगा कि ये गोल्ड लोन की कंपनी है? तो ऐसा कोई भी कंपनी जिसके लोन बुक में, ठीक है, 50% से ज्यादा की गोल्ड लोन ही हो, जैसे 100 करोड़ का उसका वो है तो 50 करोड़ से ज्यादा मतलब 51, 50 या वैसा, अगर वैसा है
तो क्या करना है, अगर वैसा है तो 50 करोड़ से ज्यादा है तो आ, वो गोल्ड लोन की कैटेगरी में आएगी, मतलब वो एनबीएफसी, ठीक है, गोल्ड लोन सैंक्शन में आएंगे कि वो गोल्ड लोन बेस्ड कंपनी है। मास्टर सर्कुलर डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन बाय एजेंसी बैंक, तो देखो एजेंसी अभी अभी सर्कुलर विड्रॉ कर लिया गया है, क्योंकि पहले बैंक 1/3 अगर ज्यादा पेंशन, मान लो उसने 15,000 रुपए काट लिए हैं, तो 15,000 रुपए काट लिए हैं इसको, और इसका पेंशन भी 15,000 आता है, इसको एक्स्ट्रा मिल गया 15,000 रुपए, गलती से चला गया, तो 15,000 उसके पेंशन का 1/3 कितना, 5,000 मैक्सिमम मंथली ही काट सकते हैं, उससे ज्यादा बैंक नहीं काट सकते हैं। ये गाइडलाइन आरबीआई ने इश्यू करी थी। ये क्वेश्चन ऐसा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्वेश्चन में आया। मास्टर, अब बाकी चीजें आप पढ़ लेना। मास्टर सर्कुलर ऑन लीड बैंक स्कीम, तो लीड बैंक स्कीम ये जानना है कि किसके थ्रू, गाडगिल स्टडी ग्रुप के बेस पे हुआ था। इसमें ब्लॉक लेवल कमेटी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है, और ये क्वार्टरली मीटिंग करते हैं, ठीक है। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी भी होती है। इससे ज्यादा आपको जानना नहीं है, बाकी इससे ज्यादा जो लिखा हुआ है आप एक व्यू ले सकते हो और आप उसे पढ़ सकते हो। करेक्ट। कंडक्ट ऑफ एसएलबीसी एट क्वार्टरली इंटरवल्स, ऑल पॉइंट्स एंड अदर डिटेल्स इन वीडियो मीन्स, जो हमने बता दिया, जितना आपको पढ़ना है आपको उतना ही पढ़ना है, ठीक। मास्टर सर्कुलर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, अच्छा ये किसने किया है, अगर किसी एसेट एआरसी अगर सरफासी के थ्रू वो करती है, ठीक है, तो क्या करेगी, तो उसमें कुछ है कि एक अर्निंग वैल्यू क्या होती है, अर्निंग वैल्यू होती है कंप्यूटर टेकिंग एवरेज ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्सेस, एक शेयर पे जितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक है। नॉन रिकरिंग टर्न फॉर प्रीसीडिंग 3 इयर्स, पहले साल प्रॉफिट ऑफ टैक्सेस एक पे 5 रुपए है, दूसरे साल 10 रुपए है, और तीसरे साल भी 15 रुपीज है, तो 30/3, तो इसका अर्निंग वैल्यू हो गया 10, करेक्ट। 10, देखो इसमें एक चीज और होना चाहिए, कुछ चीज, ओके। नेक्स्ट, 8% ट्रेडिंग कंपनी 10% है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। दिस और नॉट इंपॉर्टेंट, यू मे लीव इट, ओके, जस्ट लिख दिया हूं क्योंकि सर्कुलर में था। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मींस एसेट इन विच नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ओके, इज ओवर ड्यू फॉर पीरियड ऑफ 180 डेज और मोर एक्विजिशन, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। एनबीएफसी एआरसी के लिए वो तब एनपीए होगा जब जिस डेट पे उसने लिया और वो 60 डेज में उसका रियलाइजेशन नहीं, 180 डेज, 6 मंथ में रियलाइजेशन नहीं हुआ, मीन्स 180 डेज में, देखो मैंने पहले भी बताया बैंकिंग टर्म्स में 30 डेज का मंथ माना जाता है, तो 6 मंथ में 180 डेज तक नहीं हुआ अगर रियलाइजेशन, तो वो एनपीए क्लासिफाई हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट जो भी पेमेंट होने वाला है, तो ओवरड्यू मैंने बता ही दिया है, क्या होता है ओवरड्यू, वही इसमें भी है। नेट ओन्ड फंड एआरसी के लिए 300 करोड़ होना चाहिए, अगर वो अक्टूबर दो, मतलब अगर अभी कोई एआरसी कमेंस करे अपना बिजनेस तो 300 करोड़ होना चाहिए, इससे पहले का 100 करोड़ का जो क्राइटेरिया चलता था अब उनको भी 300 करोड़ तक पहुंचना है, लेकिन जो उनके पहले हैं उनको फेज्ड वे में पहुंचना है, ठीक है। मार्च 2024 तक इनको 200 करोड़ कर लेना है, और मार्च 2026 तक इसको 300 करोड़ कर लेना है। परमिसेबल बिजनेस एआरसी क्या कर सकती हैं, वनली सिक्योरिटाइजेशन कर सकती हैं, और वो डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं किसी से भी, ठीक है, केवल सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू उसको सेल कर सकते हैं दूसरों को। इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट सरफासी, एआरसीज आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द पर्पज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटी फॉर कंसेंट हैविंग, अच्छा चलो, अगर जिस सेट को एआरसी लेना चाह रही वहां पर कम से कम 60% क्रेडिटर्स का कंसेंट होना चाहिए कि वो एआरसी उसको रिकवरी के लिए ले रही है। अगर मल्टीपल लोगों ने दिया, 4, ठीक है, मान लो 6 लोगों ने दिया है, तो 60 लोगों ने दिया मान लो, तो 36 लोग मिनिमम उसके होने चाहिए, जो लोग हाँ बोले कि हम उसके रिकवरी के लिए यस बोल रहे हैं, आप उसके एसेट इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए चाहिए। सब स्टैंडर्ड के लिए
इसमें 10% है, एआरसी को करना है। ये डाउटफुल और लॉस के लिए पूरा 100%। बाकी डिटेल्स जो है कि अगर आइटम 1 50% ऑफ रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग। ओके। एपी कनेक्ट क्या है? ठीक है, ये कुछ नहीं है। ये एपी कनेक्ट क्या है? ये आरबीआई का एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू फुल फ्लेज मनी चेंजर्स अपना प्रोसेसिंग करते हैं और उनको अपॉइंट किया जा रहा है अभी रिसेंटली। तो केवल एपी कनेक्ट जानते रहो, फुल फ्लेज मनी चेंजर्स जिस कैटेगरी में आते हैं ये आप जानते रहो, बस इतना बेटर है। उससे ज्यादा का पढ़ने का आपको जरूरत नहीं है। फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट। देखो ग्रीन डिपॉजिट क्या होती है? कोई भी ग्रीन प्रोजेक्ट बहुत चल रहा है ना, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए अगर आप ले रहे हो लोन, तो वो या कोई डिपॉजिट ले रहे हो कहीं से, तो वो ग्रीन डिपॉजिट में आता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो आरबीआई उसके लिए रिलैक्स नाम्स रखता है, इसलिए लोग ज्यादातर इसके थ्रू। अच्छा, ग्रीन फाइनेंस क्या है? जो ऐसा फाइनेंस जो ग्रीन, उसके लिए अच्छा, एक इसी में टर्म आता है ग्रीन वॉशिंग। देखो आ भी गया। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? मीन द प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्ट सर्विसेज एज ग्रीन बट दे नॉट मीन टू। सिंपल सी बात है, आपने ग्रीन एनर्जी के लिए, ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया, बट वो एक्चुअल में ग्रीन प्रोजेक्ट नहीं है, एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, और आपने इसको छुपाया, तो ये ग्रीन वॉशिंग होती है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए अर्बन हाउसिंग पहले ही बता दिया हूं कि आप टियर 1 2 पूरा पूरा पीडीएफ ही यूसीबी का और वीडियो पड़ा हुआ है मेरा, आप उसको पढ़िए, इसको अलग से पढ़ाने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है। ओके। अब ये ऑथराइज कैटेगरी डीलर 2 का है, तो ये आपको पढ़ने का जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट सर्कुलर नहीं है। इसमें क्या है कि ऑल यू नीड टू नो कैटेगरीज क्या है। एमसीक्यू पीडीएफ ऑन आरबीआई सर्कुलर्स आपको ग्रुप में नहीं मिलेगा, क्योंकि अब देखो उसके लिए मैं खुद पेपर पे लिख के टाइपिस्ट को देता हूँ, उसके लिए मैं पेमेंट करता हूँ। तो देन इफ आई एम नॉट चार्जिंग यू फी, देन आई शुडंट आल्सो पे समथिंग टू यू विच आई एम बीइंग चार्ज फॉर दैट। ओके, तो वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है? टाइप करना है @exam zone 24/7। आप मुझे टेक्स्ट करो, आई विल सेंड यू द पीडीएफ। ओके, यू डाउनलोड द पीडीएफ। इट इज 10 to 50 rupees for पीडीएफ। इट इज मिनिमम इज द 10 फॉर ईच एमसीक्यू पीडीएफ। आपको हर आरबीआई के सर्कुलर के, मास्टर सर्कुलर के एमसीक्यूज मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मिलेंगे, और ऐसे भी एमसीक्यूज मिलेंगे जो पहले इससे स्केल 2 3 और एसबीआई में आ चुके हैं, उसमें 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हर पीडीएफ में ऐड किए हुए हैं। ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को प्रमोट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। दिस इज द टेलीग्राम चैनल, आप ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। बेटर, और लास्ट मैं बोलूंगा कि यू जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ वेरी वेल बिकॉज कंपटीशन इज वेरी टफ। डू नॉट रिलैक्स टिल यू गेट ऑफर लेटर इन योर हैंड। ओके, आपको नींद नहीं आनी चाहिए तब तक जब तक आप अपने ऑफर लेटर अपने हाथ में नहीं पा जाते, बिकॉज कंपटीशन इज वेरी टफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर preparing for that exam, that if you are preparing it in a good way. Okay, have a